أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اسجدوا لمن خلقت طينا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإذهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق اللہ العظیم. اور اس وقت یاد کرو، یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیا کیا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے. اور کہنے لگا اس شخص کو آپ نے جو مجھ پر فوقیت دی ہے اسی بنا پر اس کو حکم دیا ہے، اللہ بتائیے اس میں کی کیا فضیلت. اللہ سے پوچھ رہا تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود کر دیا. تو کہنے لگا کہ اگر مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تو میں ان کی ساری اولاد کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، جو تیری پیروی کرے گا ان سب کا ٹھکانہ پوری طرح سزا ان کو جہنم میں دی جائے گی، پوری سزا دی جائے گی جہنم میں جو تیری. اور تو ان پر چڑھا لے کر اپنا لاؤ لشکر، اپنی آواز سے، اپنے سواروں سے، اپنے پیادوں سے، اور پھر ان کو مال میں اولاد میں شریک کر اور ان کو وعدے کر. اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے سب جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، دغا بازی کے وعدے ہوتے ہیں. بے شک جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ ہی یہ کام بنانے کے لیے. تو کل بھی آتے ہیں آپ کے سامنے آئی تھی. ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کے وقت انہیں جو باتیں کہی تھیں جو ہے فضیلت کس کو ہے یہ کیا معلوم ہے، فضیلت دینے والے پر ہے نا. مٹی افضل ہے کہ آگ افضل ہے، کیا تیرا سمجھنا ہے. اب پیدا کرنے والا تو کس کو افضل بنا تو انہیں افضل ہو جاتی ہے. فضیلت جو ہے اللہ کے دینے سے آتی ہے کسی چیز میں بھی ہو. ہمیں کسی کو فضیلت سمجھ لے بیٹے کیا ہونے والا، انہیں اپنے خیال میں سمجھ لیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بلکہ بے شمار 125 مقامات پر جن اور شیطان کا ذکر ہے. اور قرآن میں سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن بنا لو کر. اللہ تعالیٰ یہ دیکھو ولا یغرنکم حیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا کسی کو دھوکہ نہ لے اور جو بڑا دغاباز ہے تم کو دھوکہ نہ لے. تو ایک جگہ بار بار انسانوں کو متنبع کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اس کے شکار میں جا رہا ہے. کیا معلوم نہیں بھی بالکل نادانی میں معلوم نہیں تھا ایسا نہیں، بلکہ بالکل یہ واقعہ 7 جگہ آدم علیہ السلام کی بہت جگہ ہے، لیکن یہ شیطان کو کہا، شیطان نے کیا وہ سب جو ہے نا ایسا سجدہ نہیں کیا، اللہ سے ایگریمنٹ کرے. یہ 7 جگہ تاکہ بتایا جائے کہ دیکھو تمہارا دشمن وہاں سے شروع ہے، تمہارے باپ کا دشمن پھر تمہاری ضرورت کو بتاؤ. اگر تو مجھے تک حضر لذیذ تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے موقع ڈھیل دے گا قیامت تک تو میں ضرور جو ہے لأحتنکن کل حنک کی معنی بات اور پورے قبضے میں لینا. دیکھو یا کو گمراہ کرنا ایسا میں کر دوں گا، اس کو چٹ کر جاؤں گا. ترجمہ جو کیے گئے چٹ کر جاؤں گا، اسے جو ہے پوری طرح قابو میں لوں گا. ذریت اس کی ذریت کو اللہ کے ہم تھوڑے لوگ بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی وارننگ کے باوجود بھی انسان اگر ایسا کرتا ہے تو کیا کرے گا. تب کس طرح کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ بھی قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. شیطان تو صرف وسوسے ڈالنا، دل میں جو ہے انسان کو جو ہے امیدیں دلانا
करा, बस तरगीब देता तुमको, तो अब करने वालों को अंदर क्या है, और अंदर दुश्मन वो है इंसान का नफ्स। अंदर जो करने वाला है वो इंसान का नफ्स अम्मारा है। इन्हें सब बोलने का सब बड़ा सब करने वाला है सब नफ्स इंसान। इसलिए इन नम्मा तुम्हारा जो है इन नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो सिर्फ बुराई का ही, अमर नहीं अम्मार, बहुत बड़ा हुक्म देने वाला है बुराई का। मालूम कौन बोल रही है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रही हैं। वो भी कब बोल रही हैं? जबकि वो जुलेखा के दाम से निकल कर आ गए, पूरे जो है इसके अंदर दरबार के अंदर आपकी जो है बारात ज़ाहिर हो गई। उन्होंने बोले भाई तो बिल्कुल उन्हें पाक है, हमें ये करने की फंसाने की कोशिश किए थे, वो इकरार कर लिए सब बिल्कुल सच्चे हैं, वो सब हम बिल्कुल नेक हैं, हमें से उनको करने की कोशिश किए थे। देखो मैं ऐसा हूँ, इन्हें क्या करती है ऐसा, कोई दूसरा एक हम भी कोई मुझे झूठा इल्ज़ाम ला के डाले थे लोग, मैं इतना नेक इंसान ऐसा। इन नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, माँ उबर नफ्स, मैं अपने नफ्स को पाक नहीं ठहरा रहा हूँ। ये देखो किस मकाम पर रही, वहाँ क्या बोलना चाहिए था और क्या बोलने जरा देखो। इन नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, इंसान बुराई पर इल्ला मा रहीम रब्बी, सिवाय जिस शख्स पर उसके रब का रहम हो जाए बस बचने वाला। तो इसलिए जो है इस नफ्स को जब तक आदमी पाक नहीं करेगा वो सही रास्ते पर चलेगा नहीं। सारे अंबिया कराम आए थे क्या, युज़क्कीहिम, तज़किया करने के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 फ़राइज़, यतलू अलैहिम आयाती, तेरा आयत करते हैं, युअल्लिमुल किताब वल हिकमत, किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम, वो युज़क्कीहिम, जब तक इसका तज़किया नहीं होगा तो मैं क्या भी नहीं कर सकता। मैं लाख पढ़ लेता, लाख तिलावत करो, कारी, हाफिज़, आलिम, मुफ्ती सब पीछे हमने क्या कर रहा है। किसी को ये टारगेट बनाने के लिए बोलो, जनरल बात सब कुछ है, तज़किया नहीं होगा, क्या कमी है उसमें? कारी भी है, हाफिज़ भी है, आलिम, मुफ्ती, तज़किया नहीं होगा। तो अंबिया कराम तज़किया करने के आते हैं इंसानों का, और फला अल्लाह ने तज़किया में रखी। मिसालें भी दी अल्लाह ताला ने, देखो बल बिन बावरा, मूसा अलैहि सलाम किसी सूरह अराफ में आया हो, मुस्तजाबुद दावत, ऐसा सब नहीं आलिम हो, ये बड़ा क्या, उसकी दुआ कबूल होती थी, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करती थी। ऐसा दुनिया के लिए जो है तो जो है लोग जाके बोले तुझे पैसे देते हैं, वो देते हैं, सब फुसला करे सब, तो जो है दुनिया के लिए जो है मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ दुआ कर रहा है, नबी के खिलाफ दुआ करना, तो दुआ करने जा रहा है बद्दुआ निकल हो रही है। देखो दुआ जो बद्दुआ करने जा रहा है ना, वो उनके खिलाफ करने जा रहा था, ज़बान उठ के ज़बान बाहर निकल कर आ गई, कुत्ते की हालत होगी। तो इतना बड़ा उसका जिक्र कर रहा है, बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम, बहुत उस ज़माने का बहुत बड़ा आलिम था उन्हें। जब तक आदमी का तज़किया नहीं होगा वो वैसे नहीं क्या कर सकते हैं। तो अब इब्लीस की बात देते चलो, इब्लीस क्या करता है? एक तो ये तो मैं बोला कि आग से बनो तो फजीलत कौन? अल्लाह देने वाली। दूसरी बात यह है कि जो उसको ज़िंदगी मिले कब तक, इला यौम युबसून, जबकि उठाए जाएंगे तो नहीं, उनके क़यामत तक उठाए नहीं, बल्कि आखिरी पहला सूर तक तब कोई इंसान जिंदा है। इला वक्तिल मालूम करके अल्लाह ताला फरमाया, युबसून फरमाया था उन्हें, तो इला वक्तिल मालूम कुरान की जगह है कि जब तक एक वक्त मुकर्रर है, यानी पूरे लोगों का ख़त्म खात्मा होने तक, पहले सूर तक है तुझे, युबसून तक, दूसरे सूर तक नहीं तुझे। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला जो है ऐसा इंसान को मजबूर कर दिया कि मजबूर नहीं किया, शैतान के आदमी इतना मजबूर कर दिया अल्लाह ताला नहीं, बस शैतान तो बताए इतना वार्निंग दी गई ऐसा ऐसा है, मैं तरकीब दिलाता है उसको। तो शैतान का बार बहुत कमज़ोर है, इनने कहते शैतान ने कहा ना ज़ईफ़ा, अल्लाह ताला बोल रहे हो भी, तो उसकी चालें नहीं चलती थी, मैं ज़रा भी अल्लाह के पास आकर कर दिया करता, तुम ज़रा अल्लाह ताल्लुक़ पैदा करो वो भाग जाता। तो जैसा बुजुर्ग ने फरमाया अमीरात के में आता, अब वो लोग जो कुत्ते पालते हैं बड़े ख़तरनाक फॉरेन के कुत्ते रहते हो, मिनिस्टर हो रहा, कोई मजाक बल बजाती है, कुत्ता ऐसा आता है कि एकदम छाती छूट जाती है पल्ले फुट रहते हैं कुत्तों को, बादलों एकदम कुत्ते देखते आवाज़ करते ही छाती इनका ये हो जाता है। अब वो कौन थी, वो उनका मालिक क्या थी बोला, उसका नाम टॉमी क्या भी हो कहते हैं, तो ए टॉमी तो इसलिए जो है अल्लाह की पनाह में जो आ गया तो बस उसका दाव नहीं चलने वाला। शैतान का दाव उस वक्त जो है जब तक कि हम अल्लाह से पनाह नहीं, अल्लाह ताला जो है बेशुमार दुआएं, बेशुमार उसकी जो है कि शैतान
चलता है, किस पर नहीं कर सकता। जो अपने नफ्स की बागें ढीली छोड़ देता है उसको उन्हें पकड़ लेता है, हाँ ये मेरा दोस्त है बाहर से आको इसे पकड़ ले तो जो है बिल्कुल काम शुरू करता है, यूँ कर यूँ से मजा करता हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला करें जो है ये मुहावरा कि जो है तू अपने लाव लश्कर लेकर आ, बेखैली के भरजली के, तेरे घोड़े सवार, तेरे सादे सवार जो है प्यादे और सवार हैं, तो ऐसा होता ही तो हाँ। तो फिर फरमा क्या है, जितने लोग जो कुफ्र मासियत के अंदर जो है मददगार बने सब उसके सवार, उसकी इसका लश्कर है, मालूम है नहीं, कोई फिल्मों का कर रहा है, कोई गानों कर रहा है, कोई बिदअतों कर रहा है, कोई सब ये क्या है उसके सब इसका लश्कर है ही, इसका लश्कर होता है। तो कौन कौन इब्न अब्बास कहते हैं कुफ्र की मासियत, कुफ्र और मासियत में लहिमात कर लड़ने चलते हैं, ये शैतान के सवार और प्यादे हैं। उन्हें कैसा समझा, मैं बता दूंगा तेरी, तो देखा उन्हें कि अंदर से सब इंसान ये है ना, सांस है, खाना सब खोखला है ना अंदर, हाँ इसे बहका सकते हैं, उसका एक अंदाज़ा ऐसा, ज़रूरी नहीं कि उसका अंदाज़ सही हो जाए। तो शरीक कर, तो उन्हें शिर्क के तमाम कारोबार चलाने में शैतान कौन दिए, वो दरगाह को जाओ, उससे लंबी छोड़ो, जाओ वहाँ बाला निकाल को, वहाँ पीरा को कर को, कौन है समझ लो तो ये जो है वहाँ जाकर मंगले कहते जी मैं पीरा को उन्होंने दी हम ना, ऐसा कैसा है, तमाम शिर्क के कारोबार जो है बस शैतान चलाने वाला। इसलिए क्या लिखें हराम का मतलब और जो है माल औलाद, तो माल जो है नाजायज़ तरीके से हासिल करना और नाजायज़ से खर्च करना, ये सब शैतान जैसे होता रहता है, ये शैतान की शिरकत है। और औलाद में शैतान की शिरकत इससे होती है, हराम औलाद होती है, बीवी से तो अल्लाह का नाम न लिया जाए तो औलाद जो पैदा होगी वो शैतान को शामिल होता है, उसके अंदर शैतान को शामिल होने से औलाद जो है नाफरमान औलाद पैदा होती है। क्या कहा बच्चे क्या करते हैं, देखो बच्चे अरे शैतान तो उसके फैमिली, शैतान हलक लगा हुआ है। मुशरिकाना नाम देखो, क्या नाम रखें, देखो लोग किसी किसी नाम रखें, देखो मुशरिकाना रसूम अदा करे, इनकी परवरिश के वक्त हराम तरीके इख्तियार करे, परवरिश के लिए हराम ज़रा आमद इख्तियार करना बच्चों की, हराम की परवरिश बदलने क्या करता बच्चा, हलाल काम करो कैसा करेंगे उन्हें तो शैतान का कारोबार बहुत फैला हुआ है। तो इसके लिए हमारे उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, हर आदमी को पढ़ना कम से कम, दूसरे लोग ने दूसरे उनको तो क्या काफी नहीं, हम लोगों को वाक़ होना ज़रूरी है। वो तलबीस इब्लीस और तारीख़ इंशाअत, दो किताबें बहुत तफसील के साथ लिखी गई हैं। इसमें शैतान किस तरह से बहकाता है, किस तरह जो है उन्हें अपने जाल फैलाता है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ है जो है। अब कोई चीज़ बोला तुम्हें बोले तुम्हारा खरबाज वालों कितना परेशान है आदमी, तुम्हें मालूम नहीं था आपने क्या करा, कुछ बड़ा तो ऐसा क्या अल्लाह ताला बोल रहे हैं अल्लाह ताला बंदों पर कितना मेहरबान है, इतनी जगह जगह बोल रहा है, देखो नहीं ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा करता है, वैसा कर रहा है। तो भी हम बिल्कुल बेफिक्री से मेरे एक दोस्त आग बोले तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा था ना, मालूम क्या भले क्या है कि माँ ऐसा कर रहा है, एकदम महंगा सर मैं क्या छोड़ दूँगा। तो ये कब तक है, मरने तक। इमाम अहमद बिन हम्बल देख ऐसे बड़े इमाम सारे इसके खिलाफ खड़े थे ना, मालूम है। इमाम अहमद बिन हम्बल हक के जो है नुमाइंदे, इमाम अहले सुन्नत के थे, सब भी नहीं लेकिन उन्होंने वाले सुन्नत। तो उन्होंने जो है मरते वक्त आए इमाम साहब कामयाब हो गए, तुम्हें कामयाब हो गए, हट करते हैं बेटे आपके से हट करे थे, वो शैतान कामयाब हो गए। मेरी जान ईमान सदकी जब मैं कामयाब अभी कहाँ होगा, ये जान ईमान सदकी जब मैं कामयाब अभी कहाँ रहे, अभी नहीं अभी जान है मेरी। तो आखिर तक लगे रहता है ये हमें बहुत अच्छे नेक हो गए, समझ लेना ये बहुत बड़ा है। देखते हैं बहुत ही चुप्पा चढ़े नहीं, हाँ चाचा रोज करेंगे यार क्या भी टेस्ट डाला था ऐड कर देता हूँ, बहुत बड़ा माल लगता है। नहीं साहब बहुत अच्छा था जी, वो छोका नहीं बहुत अच्छे थे साहब, उन्होंने क्या कि जरा बिगड़ गए
بہت اچھے تھے ہمیں دیکھیں ان کو، لیکن اب ذرا راستہ لائن چھوڑے سنتے رہتے میرا واقعات. تو ایک تو نفس اور شیطان، ان کو جو ہے اس کی گرفت آخر تک رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ذرا کیا بھی اچھا کر لیا میں سدھروں ہو کر کو، یہ بہت غلط فہمی ہے. دیکھیں واقعات دیکھو، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس شیطان کی شروعاتوں سے بچا کر دین پر قائم رکھے، اسی طرح ہمارا خاتمہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.